Raghav Chadha has led, the political earthquake against Aam Aadmi Party, against his former party chief Arvind Kejriwal. And he was a very key confidant and party strategist. But today his strategy was merging with the BJP, and not alone, with 6 others from Rajya Sabha, which meant he and others would not stand disqualified because of the 2/3 strength of a merger, a major loophole that they found. And his parting shot, this is what they're calling it: I was a right man in the wrong party. This is what Raghav Chadha said. Listen in. आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and ourselves with the BJP. हम BJP में विलय करते हैं। राज्य सभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागज होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। And we were seated right next to him was Sandeep Pathak, considered Kejriwal's blue-eyed boy, former IIT Delhi professor, a numbers person, key role in electoral math. Ashok Mittal, lovely professional university founder, chancellor, family runs famous Lovely Sweets as well. Replaced Chadha as deputy leader of AAP in Rajya Sabha, joins BJP 10 days after ED raids. The others included Swati Maliwal, Harbhajan Singh, Vikram Sahane, Rajendra Gupta, most of them with critical influence in Punjab, and one of the states that's also gearing up for assembly elections next year. So AAP, within minutes, shot back, accusing Raghav Chadha and 6 others of being traitors and tearing into BJP for Operation Lotus ahead of Punjab elections. An allegation the opposition has repeatedly raised ahead of elections time and again. And Sanjay Singh also talked about how BJP used central agencies, referring to the Enforcement Directorate raided on the premises linked to Ashok Mittal under FEMA. They alleged that this was a massive betrayal and BJP conspiracy, it said, was time to destabilize the Bhagwant Mann government ahead of 2027 polls. And earlier around mid-April and soon after Raghav Chadha was removed from the post of Deputy Speaker and Punjab had also withdrawn his security, the Aam Aadmi Party had accused him of colluding with the BJP, particularly after he was granted Z category security by the centre. BJP leaders hailed it as call of conscience and biggest political coup against Aam Aadmi Party, boosting their Rajya Sabha numbers. मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए तब पड़ा था। अरे भैया, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, तब पड़ा था छापा 3 दिन पहले, और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। हरभजन सिंह के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा, राघव चड्ढा के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। तो डर से गए, एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को कहा तेरे पे लगा देंगे छुरी। यही होता है ऑपरेशन लोटस। और क्या होता है? पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने जिहड़े गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने, पंजाबियां दे गदार ने। बैठिया बिठाया नूं गद्दियां मिल गई, वोटां तां मंगणियां नहीं पईयां जी, ना किसी मुरे हाथ जोड़ने पे,
ਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। Viewers, Operation Lotus is what the Aam Aadmi Party is calling it. Let's listen in to how BJP is responding to these allegations. अरविंद अकेले की पार्टी बन गई, अरविंद अकेले की पार्टी। और कितने नेता निकल के गए, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष, अलका लांबा, राजेंद्र पाल गौतम, इनमें से कई नेता तो अलग अलग पार्टीज में चले गए, कांग्रेस चले गए। वो भी ऑपरेशन लोटस था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये पार्टी जन्मी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, जन लोकपाल के लिए लड़ने के लिए, आरटीआई जैसे मुद्दे उठाती थी। परंतु वो जो वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जन्मे थे, शीश महल बनाकर बैठे, शराब घोटाला करके बैठे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता दिल्ली और पंजाब में इनके नेता थे। तो इसीलिए जब वो सिद्धांत से हटे तो अनेकों नेता केजरीवाल से हटे, पर अपने अंदर की खोट देखने के बदले आज फिर से दोषारोपण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी जो मंडली है। मुझे लगता है ये दिखाता है कि अब भी नहीं समझ पाए हैं कि असली कारण क्या है। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। राघव चड्डा को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्डा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता, वो वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है, इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अब तो लोगों को भी, आम आदमी पार्टी हो या सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हों उनको हम लोग पहचानने का काम करें। प्रधानमंत्री जो आइडियोलॉजिकली जो जुड़ा हो, अब ऐसे तो भाजपा ईडी सीबीआई लगा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जेल में थे तो ये लंदन में थे, सब लोग जान रहे थे उसी टाइम जो है भागे हैं या भगाए गए हैं, चाहे जो भी बात हो। तो देखिए फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, लोगों की असलियत जो है वो सामने आ रही है। पार्टी की देश को विभाजित करने वाली विभाजनकारी नीतियां और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है बार बार, इसको अस्वीकार करते हुए आज आपने देखा होगा कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 2/3 एमपीज जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये वो क्षण है जब आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को
शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, राष्ट्र प्रेम की नीति और भारत मां का जो भी सच्चा भक्त विकास की इस गंगा में जुड़ना चाहता है, उस प्रत्येक सदस्य का हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ये पार्टी तानाशाही है और केजरीवाल की तानाशाही के कारण ही मुझे लगता है कि ये दिन इस पार्टी को देखने को मिला। और जो केजरीवाल कहे वो ही सही है, ऐसा चलता नहीं है राजनीति में। स्वाति मालीवाल को अपमानित किया एक महिला को, कितनी देर कोई अपमानित होगा किसी दल के अंदर। जब बातें स्वाभिमान पे आती हैं, अनख पे आती हैं, तो मुझे लगता है कि जिन साथियों ने आज वहाँ इनको छोड़ा है वो पंजाब से ज़्यादातर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पंजाब की भावनाओं का प्रेशर भी है। आज हर पंजाबी इस बात से चिढ़ता है कि मुख्यमंत्री मान ना होके केजरीवाल है, तो आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वो करेगी नहीं, वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाएगी। अच्छा है जैसे चलता है। देखिए, केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन जो बैठने वाले लोग हैं, उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए, ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं लोग और उसी में जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा में लोग पहुंच गए वापस। अब केजरीवाल जी कब जाते हैं वो देखने की बात है। इसमें मैं कोई झटका नहीं देखती हूँ, ये कोई आश्चर्य के बात भी नहीं है। जब ये लोग अपने बाप के पास वापस जा रहे हैं, उनमें क्या झटका है? कहां से आया आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आया था, बीजेपी और आरएसएस ने बनाया इस पार्टी। हमारे ऊपर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे ऊपर आरोप था, सब बंद हो गया। कोई भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, कोर्ट भी बोला हुआ है। जो भी 2G है, कोल भी है, सब कुछ। तो इसमें और एक और बात है, हमारे देश के जननायिका सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया था। ये सब कर्मा है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अभी उनके पास उतना नेता है जो अपने वैगन आर के अंदर बैठ सकते हैं। कर्मा हर बार वापस आ जाता है और कुछ नहीं है।